हालेलुया कि ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਜਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਪੁਰ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा नाम के आर पांडियन है, मैं साउथ इंडियन हूँ, चेन्नई का रहने वाला हूँ। हालेलुया। थैंक यू। ਅਸੀਂ ब्रदर का स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। खुदा को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। जय मसीह साहब। जय मसीह। मेरा नाम आकाश मसीह। जी आकाश मसीह। आकाश मसीह कितों ही पंजाब तो जफरवाल। कितों जफरवाल पंजाब। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਆਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਸਮਾਪਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जय मसीह ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈ ਨੂੰ। ਮਸੀਹ। ਬਰਲਾਪ 3:40 ਆਇਤ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਤੀਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਹਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। 5 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
और ਕਿਹੜਾ वचन ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਮੇਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਰਮੀਆ ਦੀ 3:40 ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਣਾ ਔਰ ਪਰਖਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਜੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੱਕੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਆ ਦਾ ਵਰਲਾਪ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 3:40 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਆ ਔਰ ਪਰਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆ हालेलुया क्या हम उस रास्ते से वापस मुड़ आए हैं जो हम रास्ते पर चल रहे थे वचन में लिखा है अगर हिंदी की किसी पर बाइबल है तो उसे दोहराएं उसको पढ़ें हालेलुया अगर किसी के पास मोबाइल में हिंदी की बाइबल है तो उसको पढ़ें हालेलुया उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है हिंदी की बाइबल नहीं है किसी के पास वहां लिखा है कि अपने चाल चलन से मुड़ा हालेलुया शब्द कौन सा आया चाल चलन से हालेलुया हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें आमीन हालेलुया अपने चाल चलन को ध्यान से परखें क्या शब्द है ध्यान से क्या आज हम अपने राहों को अपने चाल चलन को ध्यान से परख रहे हैं कि हमारा जो रास्ता है वो हम सही दिशा पर जा रहे हैं जो हम रास्ते को अपना लिया है क्या वो रास्ता हमारे जीवन के लिए करेक्ट है क्या हम ध्यान से अपनी चाल चलन को परख रहे हैं कौन कौन शख्स है कि प्रतिदिन अपनी चाल को परखता है कोई जो प्रतिदिन अपनी चाल चलन को ध्यान रख के परखता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं लिखा है कि अपनी चाल चलन को बड़ी ध्यान से परख और मुड़ आ मुड़ना क्यों जरूरी है
किसको पता है? बाइबल कौन कौन पढ़ता है घर पे? जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल ऊपर उठाएंगे। जिसके पास बाइबल है, ऊंचा करें, ऊंचा करें दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना इसको पढ़ते हैं? इस वचन को जितनों के 10 आदमी के पास बाइबल है, कितना इसको पढ़ते हैं? ये बोलिए। ब्रदर ने बोला हम 3-4 अध्याय पढ़ते हैं, और अध्याय, मैं अध्याय बोला, अध्याय पढ़ते हैं, और कोई? ब्रदर सुखदेव ने बोला है कि 3-4 अध्याय और 3-4 अध्याय, और बोलिए ब्रदर सनी, एक अध्याय और भाई रमेश है अद्धा अध्याय, भाई रमेश दूसरे 40 मिनट पढ़ता जी बस। 40 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? 10 ਅਧਿਆਇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਸਹੀ। ਬਾਈਬਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਾੜ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੋਰ ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪੜਾਂਗੇ। कहोता 6 दी 23 है। क्यों जो हुक्म दीवा तालीम जोत ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾੜ जीवन ਦਾ राह है। आमीन, हालेलुया। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ दीजिए प्लीज। हालेलुया। रिशेफ तेरी बिलिनबा, हालेलुया। रिबिश के तेरी बिलिनबे शंदाना नमः संदाना नमः, देखे तेरी बिलिनबे शंदाना नमः संदाना रिबिश के तेरे ज़बूरा तो क्या जी। हालेलुया। कहोता, हाँ जी हिंदी पढ़ो। आज्ञा तो दीप है, हाँ। शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन, हालेलुया। सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। क्या लिखा है? पहले पढ़े। पहला बात क्या है? आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा तो दीपक है। इसका मतलब अगर हम आज्ञाकारी में हैं तो हमारे अंदर क्या है? दीपक है। हम दीपक की तरह जल रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात, और शिक्षा ज्योति। शिक्षा क्या है? ज्योति। अलग अलग बातें हैं। पहली बात क्या है? दिए का जिक्र आया है। दूसरा ज्योति का। हालेलुया। और लिखा सिखाने वाला डांट जो सह लेता है। क्या लिखा? सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है।
आमीन हालेलुया। सिखाने वाली की डांट क्या है? जीवन का मार्ग है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि तलीब क्या है? ज्योति है। हालेलुया। क्या आज हम आज्ञाकारी में रहते हैं? हम अपने काम को जाते हैं, सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, काम पर जाते हैं और खाना हम पूरे 3 टाइम खाते हैं। तो ये रूह की खुराक है। कोई बोलता हम 1 चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बोलता हम आधा चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बोलता मैं 3 चैप्टर पढ़ता हूं। हम खाना मिस नहीं करते। वचन तुम्हारा बहाना क्या होता है? काम पर हम क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। क्या है? क्या हो जाता है? थक जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, तो अगर ये हम वचन को नहीं पढ़ते तो ये हमारा शरीर कैसे, जो आत्मिक है, जो आत्मिक उन्नति के लिए, वो कैसे स्वस्थ रहेगा? कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर में उन्नति कर सकते हैं? जब तक हम इस वचन पर गौर नहीं करते, जब तक हम आज्ञाकारी नहीं करते, जब तक हम ताड़ को सहते नहीं हैं। आज कोई ऐसा वचन आ जाए ना, कहना ये पार्षद है ना जानबूझकर मेरे ऊपर लगाया है इस वचन को, जानबूझकर, है ना? कहते हैं ना, बाद में घर जाके बात करते एक दूसरे से। मैं उस चर्च में नहीं जाना था। तो लिखा ना क्या वचन? ताड़ जो होती है जीवन का मार्ग है। तो अगर हमने ताड़ को सह लिया तो सही रास्ते पे मसला, हम मार्ग पर सही जा रहे हैं। तो लिखा ना वचन में, बरलाप में क्या पढ़ा है कि अपने रास्तों को, अपने राह को क्या करें? परखें। तो मेरा सवाल वही है कि हमने इस हफ्ता जाकर अपने राहों को परखा है कि नहीं? मैंने पिछली बार बोला क्या था? मैं इस शब्द से आगे नहीं जाऊंगा, पमा मुझे 1 साल लग जाए। और मैं ये वचन आपके दिमाग और अपने हृदय में डालना चाहता हूं कि जब तक ये डल ना जाए तब तक आगे नहीं जाऊंगा। और जितने पिछले आए थे, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपने अपने राहों को कितना परखा? 10%, 20%, 40%, 50% के 100%? जी, जी ब्रदर जोगा जी, कितने % अपने रास्तों को इस हफ्ता जो वचन पिछले हफ्ते सुनकर गए थे, कितना परखा? जी 30%। ठीक है, 30% में क्या परखा आपने? मैं अपने जीवन को भी करता हूं तो आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई? और कोई?
ब्रदर जोगे जी ने बड़ी ईमानदारी दिखाई है कि उन्होंने बताया कि मैंने 30% अपने रास्ते को परखा, बाकी उन्होंने परखा। हाँ? हाँ? कितने % परखा? क्या जो आप करते थे उसको इस सप्ताह में छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? परखने का मतलब ये है कि जो हम करते थे अब नहीं करते। कितने %? मैं अपने आप को काफ़ी जानकारी कि मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ जी आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कोई? जी ब्रदर सनी, कितने % अपने रास्ते को परखा और मुड़ गए? हम इन दो बातों के पर गौर कर रहे हैं। पहली बात है कि अपने राहों से परतना और परखना। आपने अपने राहों को परखा है एक हफ्ते में, और कितना वापस आप मुड़ आए हैं? जी मैं कोशिश करना अपने आप को चेंज करने की, फिर भी थोड़ी गलतियां हो जाती। मैंने पूछा कितने % वापस मुड़े? मैंने गलतियों का नहीं पूछा कि आप गलतियां कर रहे हैं। कितने % परखा आपने? जी है 0% कि 10%? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो खुदा। वचन में लिखा है कि अपने राहों से परत और परख और लौट आओ। हालेलुया। वचन को यहां सुनकर यहां छोड़ना नहीं है। कहां लेके जाना है? अपने जीवन में, और उसमें गौर करना है। हालेलुया। जब तक हम अपने खुदा की उस वाणी को अपने जीवन में नहीं लेकर जाते, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि हमने ऐसी जमीन को बनाना है जहां बीज उगे और क्या लेकर आए? फल लेकर आए। हालेलुया। ये नहीं कि मैं वचन को सुना रहा हूं और बीज को डाल रहा हूं। क्या आप अपने हृदय को पथरीला करके तो नहीं बैठे? क्या आपके हृदय में झाड़ियां तो नहीं है? क्या आपके हृदय में वो रास्ता तो नहीं है जहां पंछी चुरा लेते हैं? परखना है। क्या करना है? परखना है। प्रतिदिन क्या करना है? परखना है। हालेलुया। और लौट आना है। हालेलुया। क्या करना है? लौट आना है। हालेलुया। यही मुश्किल है कि हम परतते हैं, पछतावा करते हैं, दुआ करते हैं सुबह कि प्रभु मुझे माफ कर, पर लौट कर नहीं आते। हालेलुया। जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। वो हाल हमारा होगा कि वचन हम सुनते हैं पर हमारा हृदय पथरीला हो चुका है। हमारा हृदय वो झाड़ियों की तरह हो चुका है जो वचन को दबा लेता है। उगता तो है, हम मानते तो हैं, पर हमारे जीवन में काम नहीं करता। वो वही झाड़ी दबा लेती है। तो वचन में लिखा है, शैतान शेर की न्याय बैठा हुआ है, उसकी आंख किस पर लगी हुई है? आप पर। आप थोड़ा चुके तो उसी टाइम
उसके कंट्रोल में आ गई। क्या आप अपने जीवन को प्रतिदिन जांचते हैं? लिखा ना कि तू जांच, तू कहां था और अब कहां है। वो आएगा और तेरे दीपट को क्या कर देगा? जगह से हटा देगा। हुन आपने अपनी अपनी जगह और अपना अपना रास्ता को करना क्या है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना? परखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? परखना है। क्या ये हमारा रास्ता सही जा रहा है? क्या हम सही दिशा पे हैं कि नहीं है? हम पढ़ेंगे उपदेशक की किताब, उसका हम 11 और उसकी 9 वर्ष पढ़ेंगे। हालेलुया। उपदेशक, हे जवान, तू अपनी जवानी विच मौज कर। हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾਵੇ। हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ हाँ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ। हाँ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ। आमीन, हालेलुया। की लिखा बात? हाँ जी। ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮौज फिर ना जवान अपनी जवानी दे दिन विच की कर? मौज कर। तू कर जो कर, तू अपनी मर्जी ना कुछ भी कर, कुछ भी कर अपनी मर्जी से, पर याद रख कि एक दिन परमेश्वर तेरा क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। तू अपनी मर्जी से खा पी मौज कर, जो करना है कर, कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें क्या दिया है? अपनी पावर शक्ति दी कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। खुदा हाथ पकड़कर वापस नहीं लेकर आएगा। ये अपने माइंड में ध्यान से बैठाने के खुदा मोड़कर नहीं लेकर आएगा। हमें ये बात खुद करना पड़ेगा, हमें खुद मुड़ना पड़ेगा, हमें खुद वापस आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें स्व इच्छा को दिया है। हमें परमेश्वर ने ये रास्ते दो दिए रखे हमारे आगे कि एक गलत और एक सही। अब हम अपने राह को परखना है और क्या करना है? परखना है कि हमारी दिशा वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। कि आज हम फ्राइडे में आकर बस भक्ति करनी है, बाकी दिन बस वही काम, वही एक दूसरे से नफरत, ईर्खा, वही एक दूसरे से गुस्सा, वही जलन, वही एक दूसरे को नीचा दिखाना। क्या आप वापस मुड़े हैं कि नहीं? क्या हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है? लिखा है कि मेरे स्वभाव में तुम बनते जाओ। तो पिछले बार भी मैंने क्या बोला था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूं। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है? पक्का? परमेश्वर पवित्र है? तो हमारे अंदर कौन है जी? हाँ? हमारे अंदर अभी कौन है? पक्का? हाँ? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, लिखा है मैं पवित्र हूं और तुम पवित्र बनो।
पवित्र बनो, पवित्र बनो। क्या हम प्रतिदिन पवित्र बन रहे हैं? कि इधर से फ्राइडे आए तो भक्ति किया तो वही आदतें पुरानी, वही टेलीफोन पर गाने सुनना, वही सब कुछ है। क्या बदलाव हमारे जीवन में आया है अब तक से? क्या हमने अपने जीवन में चेंजिंग लाई है कि मैं अब ये करता था अब नहीं करूंगा, मैं नफरत करता था अब नहीं करूंगा, मैं गाली निकालता था अब नहीं करूंगा, मैं किसी को गुस्सा करता था अब नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपकी दिशा करेक्ट है, अगर नहीं कर रहे हैं तो लिखा कि एक जरने से दो बोलिए, पढ़ा नहीं बच्चा? एक जरने से, तलवार की जरने से प्रकाश की पोथी में लिखा गया है, दो धारें नहीं निकलती, एक मीठा और एक खारा। तो आप अभी जांचें हमारे अंदर यीशु मसीह है जी। अपने विवेक में याद करें कि हमारे अंदर परमेश्वर है। क्या यीशु मसीह किसी को बुरा कहता था? क्या परमेश्वर किसी की टांग को खींचता था? तो आज हम एक दूसरे की क्या खींचते हैं? टांगों को खींचते हैं। मैं करेक्ट हूं, तू करेक्ट नहीं है, तू तो ये काम करता है। आज हम एक सेकंड लगाते हैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए। तू नहीं सुधर सकता, तू ऐसा ही रहेगा। और वचन में लिखा है जैसा तू बोलता जाएगा तेरे साथ वैसा होता जाएगा। तो अपनी जुबान को करेक्ट करें, अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें। आज अपने बच्चों के लिए हम बहुत ऐसे जिनके बच्चे शब्दों को बोलते हैं, तेरा कुछ नहीं बनने वाला। अपने बच्चों के लिए सही शब्दों को यूज करें और ऊंचे शब्दों को यूज करें। मेरे बच्चे ऊंचे डीसी बन गए हैं, मेरे बच्चे ऊंचे सरकारी नौकरी पर ऊंचे अफसर लग गए हैं, ऐसे शब्दों को यूज करें। क्योंकि अभी तक हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने अभी तक अपनी उस सामर्थ को देखा नहीं, अपने रास्ते को परखा नहीं है। जब हम परख जाएंगे तो हमारे शब्द भी सही हो जाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ चलना भी सही कर देंगे। मसीह कहलाना ये काफी नहीं है, मसीह बनना ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। मसीह बनकर दिखाना है। यीशु मसीह ने अपने पिता को जो उसने आज्ञा दी थी वो उसने करके दिखाया। क्या आज हम करते हैं? हम करके दिखा रहे हैं। हम तो जाते हैं चर्च जाते ही बाद में बाइबल कहां रखनी है, जहां वो होता ना किल वहां टांग देनी है, वहां जाकर फिर उसके बाद हफ्ते बाद ही देखना है। जब चर्च जाना है तब हम उसको क्या कर ले, देख लें, पढ़ लें। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने रास्तों को क्या रहे हैं, परख रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ
16 अध्याय ਉਹਦੀ 17 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों जो मेरियां अखां उन्हां दे सारे राहां उत्ते हन, ओ मेरे हुजूरों लुके होए नहीं हन। आमीन हालेलुया। क्या वचन बोल रहा है? क्या कह रहा है? क्यों जो मेरी आंखें उनकी राह पर है और वो मेरे हुजूर से लुके हुए नहीं है। एक बात तो पक्की है कि परमेश्वर की आंख हम पर लगी हुई है, हमारे राह पर लगी हुई है कि हम किस दिशा पर जा रहे हैं। आगे पढ़े, हिंदी में पढ़े इसको। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। आमीन। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है जी, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। आमीन हालेलुया। क्या लिखा है? उनका चाल चलन मेरी आंख से सामने छुपा हुआ नहीं है। इसका मतलब हमारा चाल चलन परमेश्वर देख रहा है कि हम किस चाल से चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तक हम अपने चाल को नहीं परखते नहीं, तब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्नति नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन अपने रास्ते को परखना है। कहना है कि प्रभु मेरे राहों को तू क्या कर, जांच। दौड़ क्या कहता था? क्या उसकी प्रार्थना थी? वो इस्राएल का राजा था जिसने 40 जंगें जीती हैं, और वो कह रहा है कि मेरे राहों को क्या कर, परख। और उसने अपने रास्ते को क्या किया? परखा। और क्या किया? लौट कर वापस आया। पर हम आते नहीं हैं, हम उसी रास्ते पे क्या करते हैं? भाग रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपने रास्ते की पहचान ही नहीं है। बंदगी, इबादत तब तक सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं है, जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के उस रास्ते पर नहीं चलाते। क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि वो सच्चे राजकों को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि वो रूह सच्चाई से उसकी क्या करें? इबादत करें। तो आज मेरे प्रियो इस जगह से निर्णय लेना है कि प्रभु मैं जाकर 10 चैप्टर वचन के पढ़ूंगा। प्रभु मैं 2 घंटे तेरे आगे प्रार्थना करूंगा। कल मेरी ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, इधर टेलीफोन मेरे से प्रार्थना नहीं हुई, ठीक है। मैं 10 बजे से बैठकर फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और मेरे को 12 बज गए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि जब तक हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं बैठेंगे तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। अगर हम यहां वर्शिप कर रहे हैं, अगर हम साज बजा रहे हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है।
5 मिनट वाली नहीं, कितने मिनट वाली जी? बोलिए जी, लीडरों से बात कर रहा हूं। हाँ जी, लीडर जी जी ये सुशी ने क्या है अपने चले एक घंटा नहीं मिलना जा रहे ये आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इसीलिए नहीं जाग रहे हैं कि हमने अभी अपने रास्ते को परखा नहीं है, कि हमारा रास्ता तो यीशु मसीह के तरफ जा रहा है। हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? उस जिंदा खुदा की। हम वचन तो पढ़ते हैं पर हमारा विश्वास उस पर नहीं है। परमेश्वर कहता है ना डर, मैं तेरे संग हूं। तो फिर हम डरते क्यों हैं? फिर हम अपनी बॉडी का क्यों ख्याल कर रहे हैं? ये तो नाश होने वाली है। थकावट क्यों हम महसूस करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि हमने राम नहीं करना, हम चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रभु से चलते फिरते भी बात कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए बेस्ट क्या करूं। कितने लोग सुबह उठकर ये कहते हैं कि प्रभु आज मैं तेरे लिए क्या करूं? कौन कहता है? कहता कोई? मैं कहता हूं प्रभु मुझे बता आज मैं तेरे लिए क्या करूं, कि कैसे मैं अपने जीवन को तेरे अर्पण कर सकूं। मैं सुबह उठ के यीशु मसीह को आई लव यू कहता हूं, पिता को आई लव यू कहता हूं, क्योंकि उसने अपना प्रेम मुझको दिखाया है और मेरे पापों को क्या किया है? क्षमा किया है। क्षमा किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। समा हमारा इन दो बातों पर ही निकल गया। आज फिर आगे फिर हम नहीं बढ़ सके। हालेलुया हालेलुया। तो अब जाकर गौर करना है, इसको पढ़ना है और पढ़कर वापस आना है। और जो भी बाइबल पढ़ता है या सुनकर सुनता है, नहीं मतलब मैं दूसरों से बात उसको मैं जगाना नहीं या उठाना नहीं है, वो भी इधर आन के वचन बोलेंगे। और अगले फ्राइडे ब्रदर हीरा जी इस विषय को लेकर आगे आएंगे कि क्या हमने सीखा है। हालेलुया। और क्या हमने अपने रास्ते को वापस किया है कि नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। और ये नहीं है कि मैं अब कह दिया कि पास्टर जी बोल दिया अगले फ्राइडे आना ही नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हमने गौर करनी है और मैं चाहता हूं कि आप जीते जागते आग बन जाएं, लोग आपको देखें और कहें कि ये वाकई परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। ऋषे के तेरे मेरे रबा सुंदरो बरारबादी नी के तेरे गौर करें वचन पर। हालेलुया। खुदा धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया। ऋषे के तेरे मना नमा सुंदरो बरारबेशे के तेरे मेरे रबा धना मना नमा संदाला रबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा प्रभु, खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है खुदावंदा, प्रभु जी खुदावंदा हम आपके राहों से मुड़े खुदावंदा और प्रभु प्रार्थना में जुट जाएं खुदावंदा। प्रभु खुदावंद धन्यवाद अपनी पहचान करें हम खुदावंदा कि हमारा रास्ता क्या है। प्रभु जी हमारा धन्यवाद हो, हम अपने रास्ते से पट के आए खुदावंदा। प्रभु आप दया करें यीशु मसीह के नाम से मैं हर जन को जीवन को ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु वचन को चराने वाली हर दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। प्रभु आप शिव हैं खुदावंदा। जय प्रभु आपके आगे प्रभु धन्यवाद हो।
जीवते प्रभु दीपक बन जाए खुदावंदा, जीवती ज्योति बन जाए खुदावंदा, ताकि जो दूसरों को चानन देने पाए खुदावंदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा मैं आपकी दया चाहता हूं प्रभु जी। ये आपके बच्चे हैं प्रभु जी, ये आपके चुने हुए हैं खुदावंदा, इन पर मैं आपकी दया चाहता हूं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। मूसा को प्रभु आपने खुदावंदा जाड़ी पर दर्शन दिया खुदावंदा, वो आग जली नहीं खुदावंदा, वो जाड़ी जल नहीं रही थी खुदावंदा। आज तो प्रभु आप खुद हमारे अंदर है प्रभु जी, आप जीवता परमेश्वर हमारे अंदर है खुदावंदा। तो हमारी जिंदगी कितनी जलनी चाहिए, हम कितने प्रभु जोश में होने चाहिए खुदावंदा। प्रभु हमें बल दे खुदावंदा, यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। मैं हर जन को खुदावंदा आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु जी। कृपा बड़ा फजल कर खुदावंदा, प्रभु दया करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਸੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਜਨ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟਾ ਭਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। जल्दी शुरू कर दीजिए। हालेलुया। से बात की हदिया लवागे और धन्यवाद। ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। खुदा मैनू ऐसा बना कर हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। मैनू ऐसा बना कर हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवां। हो जावे ईमान मेरा वंगरा चटान दे, हो जावे ईमान मेरा वंगरा दे। काब वांगू उड़ा सदा विच असमान दे, काब वांगू उड़ा सदा विच असमान दे। काब वांगू उड़ा मेरे खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया